चैप्टर 4 ऑडिट ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। तो मैं ऑडिट एविडेंस को जहाँ ऑडिट एविडेंस कंप्लीट हो रहा है एंडिंग से शुरू करने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस जो है ना एप्लीकेबल है सारे ऑडिट एविडेंस जो कि ऑब्टेन्ड हुए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। एनेबल करते हैं ऑडिटर को ऑब्टेन करने में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू बी एबल टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन और विच टू बेस द ऑडिटर्स ओपिनियन। ठीक है। एप्लीकेबल, सॉरी गाइज, वेट अ सेकेंड। Applicable to all the audit evidence obtained during the course of the audit to enable the auditor to obtain sufficient appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusion on which to base the auditor's opinion. Most of the auditor's work in forming the auditor's opinion consists of obtaining and evaluating audit evidence. Most of the auditor का जो work है वो इसी में होता है कि audit opinion form करना जो consist करते हैं obtaining and evaluating audit evidence. ऑडिटर को जो है कंक्लूड करना है whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained to reduce audit risk to an acceptably low level and thereby तो बेसिकली इसमें तो ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन दे रखी है इवैल्यूएशन ऑफ। अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या है पहले तो ये देख लेते हैं, फिर देखते हैं रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट को। hmm, यहाँ से है ना, हु इज़ मैनेजमेंट एक्सपर्ट? एक ऐसा इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो पजेस करता है एक्सपर्टाइज इन अ फील्ड जो कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के अलावा है, whose work in that field is used by the entity to assist the entity in preparing the financial statement. तो एक an individual or organization possessing expertise in a field other than accounting and auditing, whose work in that field is used by the entity to assist the entity in preparing the financial statements. Now, relying on the work of a management expert, if the entity has employed or engaged experts, the auditor may rely on the work of experts. Okay, provided he is satisfied that sufficient and appropriate evidence is obtained with reasonable assurance to form an opinion on the financial statements. When the information to be used as audit evidence has been prepared using the work of management expert, द ऑडिटर शेल टू द एक्सटेंट्स उसको तीन चीज़ें करनी है। पहला तो इवेल्युएट करना है कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट, फिर उसकी वर्क की अंडरस्टैंडिंग लेनी है और इवेल्युएट करना है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट्स वर्क एज उसके अप्रोप्रिएटनेस को। तो इवेल्युएट द कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट, इवेल्युएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क एज ऑडिट एविडेंस फॉर द रिलेवेंट असर्शन। नाउ तो वैसे तो हम ऑडिट सैम्पलिंग को अलग ऐसे में पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं एक बार इसको यहाँ पे रीड कर लेती हूँ। Audit sampling is designed to enable conclusions to be drawn about an entire population। मतलब है ना, एक entire population के basis पे ना conclusion draw करना, सॉरी, एक entire population पे conclusion draw करना एक sample के basis पे, उसको हम audit sampling बोलते हैं। Audit sampling is designed to enable conclusions to be drawn about an entire population on the basis of a testing a sample drawn from it। और ये subsequent paragraphs। अब inconsistency और doubts over reliability of audit evidence, इनकन्सिस्टेंसी इन या फिर डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी। ठीक है, अगर ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन हुआ है फ्रॉम वन सोर्स जो कि इनकन्सिस्टेंट है विद दैट ऑब्टेन फ्रॉम अदर, या फिर ऑडिटर को डाउट है ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड इन ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिटर शेल डिटरमाइन करेगा मॉडिफिकेशंस और एडिशंस टू ऑडिट प्रोसीजर्स necessary to resolve the matter and shall consider the effect of the matter, if any, on the other aspects of the audit. So basically, if audit evidence obtained from one source is inconsistent with that obtained from another source, या फिर auditor has doubt over the reliability of information to be used as audit evidence, तो auditor को determine करना है modification और additions audit procedure का जो necessary है to resolve the matter
और कंसिडर करेंगे द इफेक्ट ऑफ द मैटर इफ एनी ऑन द अदर एस्पेक्ट्स of the audit. So, audit evidence obtained from one source is inconsistent with that obtained from another, or the auditor has doubts over the reliability of information to be used as audit evidence. The auditor shall determine what modification or addition to audit procedures are necessary to resolve the matter and shall consider the effect of the matter if any, on other aspects of the audit. For example, responses to inquiries of management, internal auditor, audit, and other are inconsistent. SA 3 230 includes a specific documentation requirement if the auditor identify information that is, ठीक है, 230 जो हमने चैप्टर 6 में पढ़ते हैं ना उसमें इन्वॉल्व करेंगे. नाउ मूविंग ऑन टू सेलेक्ट करना एक स्पेसिफिक आइटम को. तो ऑडिटर को डिसाइड करना है टू सेलेक्ट स्पेसिफिक आइटम फ्रॉम अ पॉपुलेशन. द ऑडिटर मे डिसाइड टू सेलेक्ट स्पेसिफिक आइटम्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन. इन मेकिंग दिस डिसीजन फैक्टर्स दैट मे बी रिलेवेंट इंक्लूड द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी. अब इन्हें स्पेसिफिक आइटम को सिलेक्ट करने में ना ऑडिटर को अंडरस्टैंड करनी है एंटिटी को, असेस करना है रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट को एंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन बीइंग टेस्टेड. तो इन मेकिंग दिस डिसीजंस फैक्टर्स दैट मे बी रिलेवेंट. तो पहला तो ऑडिटर मे डिसाइड टू सेलेक्ट स्पेसिफिक आइटम्स फ्रॉम पॉपुलेशन. फिर ऐसा डिसीजन लेने के लिए फैक्टर्स दैट मे बी रिलेवेंट इंक्लूड करेंगे ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग टेस्टेड. To understanding of the entity, assess risk of material misstatement and characteristics of the population being tested. तो the judgmental selection of specific items subject to non-sampling risk. अब judgmental selection है जो specific item वो subject है to non-sampling risk. अब specific item selected क्या include कर सकते हैं? High value और key items. कितने items दे रखे हैं? तीन 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 सॉरी तीन आइटम्स जो है ना वो इंक्लूडेड है स्पेसिफिक सेलेक्ट आइटम सेलेक्ट करने में. हाई वैल्यू और की आइटम्स, ऑल आइटम्स ओवर अ सर्टेन अमाउंट, या फिर आइटम्स टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन. हाई वैल्यू और की आइटम्स, आइटम्स ओवर अ सर्टेन अमाउंट, या फिर वो आइटम्स जो एक सर्टेन अमाउंट से एक्सीड करते हैं वो, या फिर आइटम्स जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं, या फिर की वैल्यू, ये हाई वैल्यू या की आइटम्स है. तो ऑडिटर मे डिसाइड टू सेलेक्ट स्पेसिफिक आइटम्स विद इन पॉपुलेशन बिकॉज दे आर ऑफ हाई वैल्यू और एग्जिबिट सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल आइटम्स दैट आर सस्पिशियस, अनयूजुअल, particularly risk prone or that have a history of error. जिसकी हिस्ट्री हो कोई एरर की, या फिर रिस्क प्रोन हो या अनयूजुअल या सस्पिशियस हो, तो ये हाई वैल्यू की आइटम्स को सिलेक्ट कर. तो ऑडिटर को डिसाइड करना है to examine items whose recorded values exceeds a certain amount. मतलब जितनी रिकॉर्ड की गई है वो exceed करती है certain amount, so as to verify a large proportion of the total amount of a class of transaction or account balance. Item to obtain information, the auditor may examine obtain information about such as the nature of the entity and nature of transaction. Nature of entity, nature of transaction. तो यहाँ पे selecting specific items complete होता है. Now moving on to selecting all items. तो पहले तो selecting all items, selecting specific items ऐसा, and then audit sampling. ठीक है, तीन चीज़ें हो सकती है. तो अगर हम सारे आइटम सेलेक्ट करें तब क्या? तो ऑडिटर जो है डिसाइड करेगा, may decide that it will be most appropriate to examine the entire population of items that make up a class of transaction account balance. 100% examination is likely in case unlikely. 100% एग्जामिनेशन जो अनलाइकली है टीओसी के केस में, हाउएवर इट इज़ मोर कॉमन फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स. मतलब 100% एग्जामिनेशन टीओसी के केस में तो अनलाइकली है, बट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के केस में कॉमन है. ठीक है, 100% एग्जामिनेशन कब अप्रोप्रिएट हो सकता है? जब है ना पॉपुलेशन जो है स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम्स हो, मतलब स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम्स हो, या होमोजीनियस पॉपुलेशन कह सकते हैं, या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क and other means do not provide sufficient appropriate audit evidence. जब significant risk है और other means जो है वो जब significant risk और other means है और वो provide नहीं करते sufficient appropriate audit evidence, या फिर रिपीटिव नेचर ऑफ अ कैलकुलेशन, बार बार एक ही कैलकुलेशन हो रही है, या अदर प्रोसेस परफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम मेक्स 100% एग्जामिनेशन कॉस्ट इफेक्टिव.
तो पहला एक सेलेक्ट करते हैं मॉल और आइटम्स का, ठीक है ना। तो ऑडिटर डिसाइड करता है टू सेलेक्ट ऑल द आइटम्स जो मेकअप करते हैं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस। तो 100% तो अनलाइकली होगा इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, बट बहुत कॉमन है टेस्ट ऑफ डिटेल्स के केस में। तो 100% एग्जामिनेशन अप्रोप्रिएट कब हो सकता है, जब स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम्स हो, या फिर है ना सिग्निफिकेंट रिस्क के अदर मीन्स हो जो प्रोवाइड नहीं कर रहा हो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, या फिर रिपीटेड नेचर ऑफ अ कैलकुलेशन, या फिर अदर प्रोसेस परफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम मेक्स अ 100% एग्जामिनेशन कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव था ना, हाँ। नाउ ये दे रखे कि कौन से मीन्स है। Selecting items for testing to obtain audit evidence when designing test of control, the auditor shall design TOC and TOD. The auditor shall design means तीन चीज़ें कर सकते हो आप मीन्स फॉर सेलेक्टिंग आइटम्स में, या तो सारे आइटम सेलेक्ट कर लो या स्पेसिफिक, या फिर ऑडिट सैम्पलिंग कर लो, है ना। और इनका एप्लीकेशन एक का या कॉम्बिनेशन का अप्रोप्रिएट हो सकता है, डिपेंडिंग, ये डिपेंड करता है ऑडिटर के जजमेंट पे, टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। नाउ इस बार 1.10 के स्टार्ट से ही शुरू करते हैं ना। अब कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमको यूज करनी चाहिए एज ऑडिट एविडेंस, ये भी तो बताना चाहिए ना। इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस, तो व्हेन इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एन ऑडिट एविडेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, द नेचर टाइमिंग मे बी अफेक्टेड बाय सच मैटर। अगर जो इंफॉर्मेशन है ना वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क से हमने यूज की है, तो उसका जो एंटी है ना ऑडिट प्रोसीजर का, वो इफेक्ट हो सकता है फॉलोइंग मैटर्स से। वो मैटर्स हम अब पढ़ते हैं, ठीक है। व्हेन इंफॉर्मेशन इज यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तो नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मे बी अफेक्टेड बाय सच मैटर। नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर टू विच द मैनेजमेंट एक्सपर्ट रिलेट्स। तो पहला मैटर है नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर, जिससे मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो रिलेट करता है, या फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट उस मैटर में, है ना। तो the nature and complexity of the matter to which the management expert relates, nature and complexity of the matter to which the management experts relate, फिर risk of material misstatement in the matter, risk of materials misstatement in the matter, या फिर nature scope objective management expert के work का, nature scope and objectives of the management experts work, या फिर availability of alternate sources of audit evidence, availability of alternative sources of audit evidence, availability of alternate sources of audit evidence, है ना। तो चार पहले मैटर हम अच्छे से याद करते हैं। नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी, nature and complexity of the work of the management expert relates, sorry, to which the management expert relates, nature and complexity of the matter जिससे management expert relate करता है, availability of alternate source of audit evidence, risk of material misstatement उस matter में, nature scope objective management expert के work का, या फिर whether management expert is employed by the entity or is a party engaged by it to provide relevant services, या तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो है एम्प्लॉय किया गया है बाय एंटिटी, या फिर कोई पार्टी है जो एंगेज्ड है बाय इट प्रोवाइडेड रिलेवेंट, जो प्रोवाइड करती है रिलेवेंट सर्विसेज, मतलब कोई दूसरी आउटसाइड पार्टी है बेसिकली, या फिर मैनेजमेंट है ना कितना कंट्रोल और इन्फ्लुएंस जो है एक्सरसाइज करती है मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क पे, ठीक है। और मैनेजमेंट एक्सपर्ट है ना कोई सब्जेक्ट है टू सब्जेक्ट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स और अदर प्रोफेशनल और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, या फिर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एनी कंट्रोल्स विद इन द एंटिटी ओवर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क, ऑडिटर की नॉलेज एंड एक्सपीरियंस मैनेजर एक्सपर्ट के फील्ड ऑफ एक्सपर्ट में, प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। तो ये सारे मैटर्स वापस पढ़ लेती हूँ। ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऐसा इंफॉर्मेशन जो प्रिपेयर्ड है यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तो उसका एंटी जो इफेक्ट हो सकता है फॉलोइंग मैटर से, नेचर, मतलब ऑब्वियस सी बात है ना। अगर फॉर एग्जांपल देती हूँ मैं कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो है ना वो बहुत इन्फ्लुएंस में है मैनेजमेंट के, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं रिलायबल होगी फॉर ऑडिट एविडेंस। सो तो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर टू विच द मैनेजमेंट एक्सपर्ट रिलेट्स,
Alternative sources available for audit evidence, nature scope objective, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स का, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट उस मैटर में, क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो है एम्प्लॉयड बाय द एनटी है या फिर कोई दूसरी पार्टी है जो एंगेज इन प्रोवाइडिंग रिलेवेंट सर्विसेज, या फिर द एक्सटेंट टू विच मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो है सब्जेक्ट है टू टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स और अदर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स, या फिर द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एनी कंट्रोल्स विद इन विच द एंटिटी, नेचर एंड कंट्रोल्स ऑफ एनी कंट्रोल विद द एंटिटी ओवर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क, या फिर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट एक्सपर्ट की फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज में ऑडिटर का, या फिर ऑडिटर का प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट. अब when using information produced by the audit entity, जब हम ऐसी इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं जो प्रोड्यूस की गई है बाय एंटिटी, तो ऑडिटर को इवेल्युएट करना है कि इंफॉर्मेशन सफिशिएंट रिलायबल है फॉर द ऑडिटर पर्पसेस, और इंक्लूड करती है नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस. ऑब्टेन करेंगे ऑडिट एविडेंस एक्यूरेसी कंप्लीटनेस पे, इंफॉर्मेशन के ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस अबाउट द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन. फिर इवेल्युएट करेंगे वेदर द इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड डिटेल फॉर द ऑडिटर्स पर्पसेस. मतलब सफिशिएंटली प्रिसाइज भी है, इवेल्युएट करना कि इंफॉर्मेशन जो है वो सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड डिटेल्ड है फॉर द ऑडिटर्स purposes. Evaluate whether the information is sufficiently precise and detailed for the auditor's purposes. Sufficient and precise होनी चाहिए auditor के purpose के लिए, और obtain करेंगे audit evidence accuracy और completeness के regarding information की. तो information to be used as audit evidence से ख़त्म होता है. अब next topic है हमारा audit trail. What is audit trail? तो audit trail क्या है? Documented flow है transaction का. Audit trail is a documented flow of transaction. यूज़ किया जाता है टू इन्वेस्टिगेट हाउ अ सोर्स डॉक्यूमेंट was translated into an account entry, right? And from there it was inserted into financial statement of an entity. The audit trail is a document flow of transaction and यूज़ किया जाता है इन्वेस्टिगेट करने में कि हाउ अ सोर्स डॉक्यूमेंट was translated in an account entry, and from there it was inserted into financial statement of an entity. So an audit trail is a documented flow of transaction. It is used to investigate how a source document was translated into an account entry, and from there it was inserted into financial statements of an entity. It is used as audit evidence to establish authentication and integrity of a transaction. ये यूज़ किया जाता है ऑडिट एविडेंस की ऑथेंटिक सॉरी एक ऑडिट एविडेंस में यूज़ किया जाता है ये इस्टेब्लिश करने के लिए एक ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी. तो पहले इतना वापस पढ़ती हूँ मैं. ऑडिट ट्रेल डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन है, यूज़ किया जाता है इन्वेस्टिगेट करने में हाउ आवर सोर्स डॉक्यूमेंट वाज ट्रांसलेटेड इनटू एन अकाउंट एंट्री, एंड फ्रॉम देयर इट वाज इंसर्टेड इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी. यूज़ किया जाता है एज ऑडिट एविडेंस टू एस्टैब्लिश ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ ए ट्रांजैक्शन. ऑडिट ट्रेल जो हेल्प करते हैं मेंटेन करने में रिकॉर्ड ऑफ सिस्टम एंड यूज़र एक्टिविटी. Audit trail helps in maintaining record of system and user activity. Like in case of banks, there is an audit trail keeping track of logon activity, detailing record of logon attempts. हेल्प करता है मेंटेन करने में रिकॉर्ड ऑफ सिस्टम एंड यूजर एक्टिविटी. बैंक के केस में ट्रैक रखना लॉगन एक्टिविटी, डिटेल रिकॉर्डिंग करना लॉगन अटेम्प्ट्स का एंड डिवाइस यूज. ये स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड है by which accounting, trade details, or other financial data can be traced to their source. स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड है जिससे अकाउंटिंग ट्रेड डिटेल्स या फिर अदर फाइनेंशियल डेटा है जो ट्रेस किया जाता है टू देयर सोर्स. ये यूज़ किया जाता है टू वेरीफाई एंड ट्रैक मैनी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस including accounting and financial transactions. Audit trails are used to verify
and track many types of transactions including accounting and financial transactions. Audit trail जो है act करता है as record keeper, जो document करता है evidence of a certain events, procedures, operations because their purpose is to reduce fraud, material errors and unauthorized use. ऑडिट हेल्प करता है एनहांस करने में इंटरनल कंट्रोल एंड डेटा सिक्योरिटी. ऑडिट ट्रेल हेल्प करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सिंग में, रीबिल्डिंग इवेंट्स, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम एरियाज. तो यहाँ हमारा ऑडिट ट्रेल भी ख़त्म हो जाता है.